Am I audible to all? Delhi Tower, Victor Tango, Bravo Charlie Delta, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Victor Tango, Bravo, Charlie, Delta, Delhi Tower. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Reading you 5. How do you read? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. नहीं नहीं 5, नहीं 4, 3, 2, मैंने 1, 1, 2, 3, 4, 5. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. होल्ड ऑन. ओके चलो ठीक है. देखो इसी से प्रैक्टिस करने से ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है. ओनली यू हैव टोल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 और मैंने उसका रीड बैक दिया. बट मैंने अपने क्वेश्चन में कुछ भी बोला ही नहीं. मैंने तो सिंपल पूछा हाउ डू यू रीड. Getting it? Okay, So you read you 5. radio 5, strength 5, Victor Tango, Bravo Charlie Delta. Done? Okay, other station, please do readability check. Other stations, I'm waiting for your answers. Who are they in meeting? You see. Yes, Romeo Kilo Delta, perform readability check. And Tango November Sierra, I guess. Perform readability check. Delhi Tower, Victor Tango, Tango, November, Sierra, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Victor Tango, Tango November Sierra, Delhi Tower, 1, 2, 3, 4, 5, read you 5. How do you read? Read you 5, strength 5, Victor Tango, Tango, November, Sierra. यहाँ पे आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया. You have told 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, but in the readback I had given only half. तो इसको कंप्लीट करवाना है. How? You can simply say here, ठीक है. आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा I say again, ठीक है. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Victor Tango, Tango November Sierra. Means I had given incomplete readback. So get it corrected. ठीक है. So whenever somebody is giving read, whenever somebody is giving readback, you need to observe as a pilot, as an ATC, whether they are giving correct data or not. Why? Suppose in the response they have told taxi via taxiway Alpha, Charlie, Delta, like this. You have given only half. Then what about Charlie and Delta? तो इंफॉर्मेशन आधा रहे या इनकरेक्ट रहे. गेट इट करेक्टेड बाय सेइंग इट अगेन. एक बार फिर से रिपीट करिए ताकि सामने वाला स्टेशन उसका करेक्ट रीडबैक दे. ओके डन. आई होप एवरीवन हैज सीन द वीडियो ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. आप सबने देखा लेक्चर कंप्लीट किया? Yes, sir. ठीक है. देन टेल मी हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स आर देयर? There are 4 rules of flight. How many? What are those? VFR, IFR, Yankee, and Zulu. VFR, IFR, Yankee, and Zulu. What is Yankee? What is Zulu? Yankee is when are flying to IFR to VFR. Very good. What about Zulu? When we are flying to VFR to IFR. Okay. Very good. So this is flight rule. Okay, everyone. In yesterday class, I have explained how many flight rules are there. So basically, we have VFR and IFR only. Okay. By the name, you must be knowing
if pilot are operating their aircraft completely dependent on the instrument reading. ठीक है, not by seeing outside of the cockpit, then that is known as IFR. And when pilot is flying the aircraft by looking outside of the cockpit, then that is known as VFR. Okay, so that is done. Then we have flight rule Yankee and Zulu. Okay, there are two more flight rule on the basis of operations, that when you are operating your aircraft initially from IFR and then change over to VFR in between, then that is known as flight rule Yankee. And when you are operating your aircraft initially in VFR and then change over to IFR, then that is known as flight rule Zulu. Okay, so these are 4 flight rules that we are observing in the flight planning: IFR, VFR, Yankee and Zulu. Clear to all? Yes, sir. Okay. Now, yesterday we have also seen the ITA code and the call signs of respective airliners. So I'll ask one by one. Please do let me know a correct readout of that. Okay. If you have been through the lecture, then I think you must be knowing that. ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपको वो पता होगा. So I'm writing one by one. Please do let me know their call signs. ये 6E175 क्या पढ़ेंगे इसको? What is the call sign for that? iFly 175. Very good. And if it is QP712, Quebec Papa 172. Vistara Akasa Air. 7. Akasa Air, not Vistara. Akasa Air 712. ठीक है. For Vistara it was UK 712 like that. Vistara. ठीक है. It was UK. Okay. Uniform Kilo. Okay. Then tell me about AIX 779. इसको पढ़ो कोई. Air India Express 779. ठीक है, very good. Then read this. S5 9er 8. High Star 599er 8. High star 5 नहीं. S5 itself is a high star. ठीक है. Okay. S5 high star 9er 8. Okay. Then if it is SG 6 8, then SpiceJet 698. SpiceJet 6 very good. So by the name I was saying yesterday, and if you look at the video, you will be more clear about that. Okay, no need to worry. Topics are very simple. You can call any aircraft either by saying its registration number or ITA code of the company plus its flight ID. So both way you can call any aircraft. That's why it is known as call sign. किस नाम से बुलाओगे? So this is known as call sign for an aircraft. So in the identification section of the flight planning, you can find either registration number or in the format of ITA code plus flight ID. Done. Now, who is going to tell me about wake turbulence? What is wake turbulence and how many categories are there? तो कोई भी इंजन कितनी स्पीड से चल रहा है और पीछे कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो जब कोई इंजन चालू होता है, जब कोई इंजन स्टार्ट होता है, so how many air they will turbulent, ठीक है, behind that engine. So that is known as wake turbulence. कितने कैटेगरी होते हैं इसके? तो 3 कैटेगरी होती है इसकी, लो, हाई एंड सुपर हाई. लो, मीडियम एंड हाई. लो, हाई एंड सुपर हाई नहीं. लो, मीडियम एंड हाई. इसका कुछ और भी नाम है? कुछ लोग दूसरे तरह से भी बोलते हैं.
लो के बदले लाइट, इस टाइप से कुछ। हाँ लाइट, मीडियम, लाइट, मॉडरेट, हाँ, और हेवी। ठीक है। हेवी। हाँ, वेक टर्बुलेंस की 3 कैटेगरी, आइदर लो या लाइट, मीडियम या मॉडरेट, हाई और हेवी। ओके, क्या होता है कैटेगराइजेशन, किस बेसिस पे डिपेंड करता है ये एक आपके वेट पे डिपेंड करता है सर। जिसका वेट वेरी गुड। जिस एक का वेट 7000 kg से कम होता है वो हाँ लो लाइट में आते हैं। हाँ, वो लाइट कैटेगरी में आता है। ठीक है, मॉडरेट वाले में जो 7 से मॉड 1,36,000 केजी, 1,36,000 केजी के बीच में आएगा तो वेक टर्बुलेंस मीडियम, और हाई मोर देन more than 1,36,000। 1,36,000. Okay. Can you tell me some of the examples? How many aircraft are there in low? How many aircraft are there in medium? How many aircraft are there in high? कुछ एक example? in low, like 172, Cessna aircraft, 152 low category. Cessna 172, 152, B200, C90. These are the low. Moderate में Airbus 320, Boeing 787. 737. ठीक है, I don't know the weight of a 787 exact. If you knows, then it's okay. But for me, Boeing 737. ठीक है, ATR. These are the medium या moderate category of aircraft. In high, how many are there? Airbus Only one. 380, A380. 350, Boeing 777, 747. These were the high. Airbus 380 is an aircraft which is super heavy. ठीक है, which is exception in heavy, and this is super heavy. Clear? yes. ठीक है. Yes. So these were the wake turbulence category. I hope every other candidate was also getting so. ठीक है. If you have seen the yesterday lecture ना, these things are not heavy to learn. Am I right? कुछ ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पे, राइट? तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, जो कि आई थिंक मैंने yesterday night only I had uploaded ड्राइव लिंक पे, so you do not get much of problem. ठीक है? So by this way you will get everything. No need to worry. If you miss the class, just watch the recordings. अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाओगे तब तो मुश्किल है, तब क्या ही ऑप्शन बचता है अपने पास. ठीक है. So these were the vector turbulence category. Now tell me one thing. What is the timeline for VFR operation? If you want to operate After under VFR. sunrise, after sunrise, 30 minutes, and before sunset, 30 minutes. Means 30 minutes after sunrise and 30 minutes before sunset. In this time zone only you can operate under VFR. Otherwise, आपको एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन या तो नहीं करोगे या फिर IFR में करना पड़ेगा. Done. And what is the altitude above which IFR is mandatory? 15,000. 15,000 feet. ठीक है. If you want to fly above 15,000 feet, your aircraft shall have mandatory IFR approved. Otherwise, you cannot fly. Clear? Chalo, very good. There was a good recap, and I am satisfied with the answer for now. ठीक है, this looks good. Now we'll move ahead to our further topics. Everyone, is that topic clear to you? किसी को कोई query हो, then you can ask. Yeah, I have seen the video, but I have little query over here. हाँ. तो 15,000 तक VFR होगा, उसके बाद IFR होगा. Yes. See, this is such. रूल कहता है कि अगर 15,000 के ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो IFR मैंडेटरी है. ठीक है, IFR होना ही चाहिए. बट बिलो 50,000 यू कैन फ्लाई आइदर VFR और IFR, दोनों चलेगा. ऐसा नहीं है कि नीचे सिर्फ VFR ही. 15,000 फीट के नीचे दोनों. बट
15,000 के ऊपर only IFR. Clear? क्लियर है ये चीज? ओके सर। हाँ ठीक है. So this 15,000 feet is just a level below which you can operate either VFR or IFR, up to you. But above 15,000 feet, only IFR, no VFR. So we'll go to the flight planning section. Yesterday I have shown you guys what are the parameters which are mandatory in flight plan. And I have also told that out of 20-30 informations, only few are mandatory. Okay. So those 13 parameters which you need to recall and which you need to keep ready always, those are aircraft identification, means what is the call sign of your aircraft, which level you will be cruise, किस altitude पे आपको fly करना है, what is the wake turbulence of your aircraft, light, moderate और heavy क्या है, departure aerodrome in the format of ICAO location designator. ठीक है, क्योंकि आप देखो डिपार्चर एरोड्रोम में 4 डिजिट का ही अपने को स्पेस मिला है. सो डिपार्चर एरोड्रोम टाइम, व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर, फ्लाइट रूल IFR, VFR, Yankee और Zulu, arrival aerodrome, then type of flight in the sense operation type, schedule, non-schedule, training. What is the alternate aerodrome? If you can't land at one aerodrome, what is the second alternate for you? Route, which route you will be following when planning for a flight. What are the special equipment available to your aircraft? Aircraft type, which model your aircraft are. Airbus 320, Boeing 737, like this. Or any other information which is necessary to seek the attention of ATC. Matlab, we have medical flight, we have VIP on board, we have foreign delegates on board, we have President of America on board, like that. So these are the information which are vital to the flight planning. कम से कम 13 parameters आपको ready रखने पड़ेंगे for the communication regarding flight plan. Now I am going to show one example, ठीक है, regarding the flight plan. The actual field one, there you can make some reference, ठीक है, and I'll also take you to the little deep if you are interested. Otherwise, I'll give you just a information of the flight plan, because flight plan is basically a thing which are related to flight dispatcher. आपको डिटेल में इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और इवन आरटी में भी इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा. स्टिल इफ देयर इज अ चांस वी विल स्टडी हाउ इट गोज, ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द फील्ड फ्लाइट प्लान ऑफ एक्चुअल एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड हाउ इट लुक्स लाइक. This is Victor Tango Sierra Mike Sierra as an aircraft identification, ठीक है. Flight rule is IFR, as you can see here, ठीक है. Then type of flight, non-scheduled. Then flight number means how many sectors are there, only one. Type of aircraft, this aircraft model BE20. Wake turbulence category, light. Equipment, now you can see here. While explaining the flight plan, I have told equipments are ILS categories, ठीक है, especially regarding the ILS category information. But in this equipment section, it is written like that S, B, G, F, R, W. So these are the equipment code, ठीक है. I'll show you how are these. क्या होता है इसको डिकोड करके आपको बताता हूं अभी. Then departure aerodrome, which airport you want to take off. Departure time, what is your schedule time of departure when you have planned to depart. Then cruising speed, what is your cruising speed, ठीक है, at what speed your aircraft can fly maximum at a straight and level flight, ठीक है. Then cruising level, which altitude you will fly, ठीक है, as an straight and level flight. Then route, कौन सा रूट फॉलो करोगे. Here you can see MMV मतलब चेन्नई. After Chennai we will take Whiskey 117. After Whiskey 7 we'll take BIA, that is Bangalore. Then DCT matlab direct, BBG to HL Bangalore, like that. So these are the route information.
Then destination aerodrome. Where is your destination? BBG, that is VOBG, HL Airport of Bangalore. What is the total estimated elapsed time? 40 घंटे का हमारा फ्लाइट का estimated time है. Sorry, 40 minutes. 40 minutes will take maximum for the operation. What is alternate aerodrome? VOBL, Bangalore International Airport. Then other information. We have PNB, B2, B3, B4. Will tell you later. What does it mean? Wherever in the flight plan you are finding some codes, ठीक है, हर एक कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग है. I'll tell you that. Then what is the endurance of your aircraft? कितने देर आपका फ्लाई कर सकता है एयरक्राफ्ट? 3 घंटा 24 मिनट एज ए मैक्सिमम. How many passengers on board? 2. ठीक है. How many emergency equipment in the aircraft available? All, UHF, VHF and ELT. Whether your aircraft can survive in desert or maritime or jungle, yes, survival equipment is there, but we cannot survive in polar region, तो कटा हुआ है. Nor desert, कटा हुआ है. जंगल नहीं. किधर? मेरीटाइम सर्वाइवल है, यानी आपके एयरक्राफ्ट में लाइफ वेस्ट और लाइफ राफ्ट है. आपके एयरक्राफ्ट में लाइफ जैकेट है? यस. कलर कैसा है? फ्लोरोसेंट है या लाइट है? लाइट कलर का है. डन. देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर सर्वाइवल इक्विपमेंट? ठीक है, 4. ठीक है. कौन से कलर का है? कवर्ड है उसमें? यस, कवर्ड है. येलो कलर का है. आपके एयरक्राफ्ट का कलर किस टाइप का है? व्हाइट, ऑरेंज एंड पर्पल. मतलब हमारे एयरक्राफ्ट का 3 कलर से कलर किया गया है. अगर कभी हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज you can suspect कि this is my aircraft. And flight plan, as you can see, this has been filled by flight pilot in command. Although flight dispatcher can fill this plan and keep ready for you, but you need to sign finally. So flight plan submission is the responsibility of captain only. That too pilot in command, not even second in command. ठीक है, कमांडर की जिम्मेदारी है, को पायलट की नहीं, कैप्टन की. ठीक है. सो just a second. Now I have told whether this flight plan information clear to all. Tango November Sierra, you are not yesterday and you are not speaking since joining. Is everything clear to you? Yes, sir. ठीक है. So in the equipment section I have told कि if there are codes, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ अलग अलग मीनिंग होता है. So I'll tell you what it is. Here you can see equipment के सेक्शन में लिखा हुआ है SBGFRY. So in the miscellaneous folder, ठीक है, in the miscellaneous folder I have put one flight plan quick reference brochure. ठीक है. फ्लाइट प्लान को भरने के लिए क्या क्या गाइडेंस मटेरियल है वो इस ब्रोशर में दिए हुए. दिस इज जस्ट अ चेकलिस्ट. तो जनरली ये चीज पायलट को भी याद नहीं रहता है. ठीक है. व्हेन आई वाज क्लिकिंग दिस पिक्चर ऑफ दिस फ्लाइट प्लान, जब मैं इस चीज का फोटो ले रहा था, दैट टाइम आई हैड आस्क्ड पायलट स्ट्रेट अवे कि सर व्हाट इज दिस इक्विपमेंट SBGFRW मीन. सो ही टोल्ड कि पता नहीं यार. स्ट्रेट अवे ही टोल्ड पता नहीं. देन ही टोल्ड कि इसका एक गूगल पे देखो ना, वहां बताएगा क्या मीनिंग होता है. ठीक है. दैट टाइम आई हैड क्यूरियस टू आस्क अबाउट द हाउ दे आर टेकिंग गाइडेंस, कि किसका क्या मीनिंग है. दैट टाइम आई केम टू नो दिस इज द फ्लाइट प्लान ब्रोशर. एंड हियर यू कैन सी इन द इक्विपमेंट सेक्शन. ठीक है. इन द इक्विपमेंट सेक्शन इफ इट इज रिटन एज S, देखो पहला लेटर है S, राइट. सो इफ इट इज सियरा देन इसका मतलब है, ठीक है, इफ इट इज सियरा देन इसका मतलब है कि इन योर एयरक्राफ्ट ऑल स्टैंडर्ड VOR, VHF एंड ILS सिस्टम इज अवेलेबल. देन इट इज ब्रावो, मींस योर एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई एट लीस्ट 91 knots एंड लेस देन 121 knots, लाइक दिस. देन इट वाज G का क्या मतलब है? सर्च करो इस लिस्ट में. G मतलब GNSS ऑप्शन, मींस आपके एयरक्राफ्ट में मल्टीपल GNSS ऑप्शन अवेलेबल है. GPS, गैलीलियो, इग्नोस, ठीक है, जितने भी GPS के ऑप्शन है आपके एयरक्राफ्ट में अवेलेबल है. देन नेक्स्ट वन इज F. लुक एट द F, मतलब आपके एयरक्राफ्ट में ADF है. देन R मींस आपका एयरक्राफ्ट PBN अप्रूव्ड है.
like that. So in the similar manner, if you look at this brochure, you will get to know what does is special equipment mean. तो स्पेशल इक्विपमेंट अगर एक एक करके लिखने लगेगा तो ये कॉलम बहुत ज्यादा भर जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ कोड्स. हर एक कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग है. देन इट इज डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम कैपेबल है. So while filling the flight plan, flight dispatchers have some quick references. Although आप जब भी किसी का फ्लाइट प्लान आजकल तो डिजिटली भरा जाता है, तो एक बार में सारा इंफॉर्मेशन फीड कर देते हो while registering that aircraft. जब रजिस्टर कर रहे होते हो उसी टाइम पे सारा इंफॉर्मेशन फिल आउट कर देते हो एंड बार बार आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो कभी आपको पढ़ने का मन करे, आपको क्यूरियोसिटी ज्यादा हो कि नहीं दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, आई नीड टू रीड, तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो ड्राइव लिंक पे मैंने डाला हुआ है इसको लेके आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इसका नाम है फ्लाइट प्लान क्विक रेफरेंस ब्रोशर. ठीक है, दिस वन. सो यू कैन रीड फर्दर. नाउ लुक एट द एनी अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन. क्या लिखा हुआ है? पीवीएन, यानी हमारे एयरक्राफ्ट में पीवीएन है, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन. ठीक है, दैट इज कैपेबल. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? B2, B3, B4. लुक एट हेयर. आपका एयरक्राफ्ट आरनेव अप्रूव्ड है विथ B2 जीपीएस है, B3 डीएमई भी है, B4 व्यूअर और डीएमई दोनों का इंटरफेस भी है. गुड. देन आईएनएस आईआरएस है? नहीं है. इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में आईएनएस आईआरएस नहीं है, इसलिए B5 नहीं लिखा हुआ है. इन द एयरबस एंड ऑल यू मस्ट फाइंड V5 इज देयर, ब्रेवो 5 इज देयर. देन C2 जीएनएसएस है, वेरी गुड. C3, ठीक है, लाइक दैट यू कैन सी C1 C2 C3 सब मिलेगा इधर पीवीएन के ऑप्शंस में. फिर आया D2 D3. ठीक है, कि D2 का क्या मतलब है? आपके एयरक्राफ्ट में जीएनएसएस है, फिर डीएमई है. सो लाइक दैट ऑल आर रिटेन हेयर इन द फॉर्मेट ऑफ कॉम्बिनेशन, कि किस इक्विपमेंट का क्या कोड दिया जाए. ठीक है, तो आपको हर चीज यहां पे मिलेगा. क्लियर? आई थिंक C3 इज नॉट mentioned here clearly, but C3 means all applicable GNS. मतलब जीपीएस के जितने सारे भी फैसिलिटी दुनिया में अवेलेबल है वो सब हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, सो जीपीएस के ऑप्शंस, यूएस का जैसे जीपीएस है सेम, रशिया का है ग्लोनस, यूरोप का है इग्नोस या गैलीलियो, इंडिया का है गगन. तो जैसे यूएस ने जीपीएस बनाया, हम सब ने भी अपने अपने सैटेलाइट बनाए. तो आपके एयरक्राफ्ट में किस किस सैटेलाइट को रिसीव करने की कैपेबिलिटी है, कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, वो सब इसी क्विक ब्राउजर गाइड में लिखे हुए रहते हैं. क्लियर? तो अगर आपको फ्लाइट प्लान में इस टाइप के कोड्स मिले, सो डोंट बी सरप्राइज्ड, एवरी कोड इज हैविंग अ सेपरेट मीनिंग. So basically these things are actually not required for the examination, but if somehow in the part 2 they may ask, तो आप इतना तो बोल सकते हो ना कि सर कुछ कुछ कोड्स लिखे रहते हैं, उसके लिए गाइडेंस बुक अवेलेबल है, वहां से हम लोग रेफरेंस लेके उसको डिकोड कर सकते हैं. हाउएवर वी आर इंजीनियरिंग कैंडिडेट, सो आई डोंट थिंक कि इतने डिटेल में हम लोगों को ऑपरेशंस की कभी जरूरत पड़ेगी लाइक दैट. बट आपको अगर इस चीज को समझना है या फिर अगर पढ़ना चाहते हो, यू कैन टेक रेफरेंस विद दैट. क्लियर? All good about flight plan? Anything you need to understand furthermore? कोई query over flight planning or anything? किसी भी टाइप का डाउट to anybody? नहीं, okay. Then we'll move ahead. And as I said yesterday, doesn't matter whichever manner you are going to apply for the flight plan, but printout shall be same. इसी फॉर्मेट में आपको निकल के आएगा. You have seen that flight plan कैसा भी हो, फॉर्मेट यही रहेगा. So it was all about the flight plan. And in India, whenever you are operating any aircraft, आपको पहले अपना फ्लाइट प्लान सबमिट करना पड़ता है.
एटलीस्ट 1 आवर बिफोर योर प्लान, ठीक है, कम से कम 1 घंटा पहले। अगर आप एक नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हो तो, अगर आप एक शेड्यूल्ड ऑपरेटर हो तो आपका टाइमिंग फिक्स है, ठीक है, आपको पहले से अलॉट किए जाते हैं एप्रॉन्स एंड रनवेज, तो आपका फ्लाइट सेक्टर फिक्स होता है। बट इफ यू आर अ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, कम से कम 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करो। और अगर उस प्लान किए हुए फ्लाइट प्लान में, ठीक है, जो आपने सबमिट किया हुआ है, अगर उसके बाद किसी भी टाइप का चेंजेज है, तो सच चेंजेज मस्ट बी रिपोर्टेड एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। तो इसको ध्यान में रखना। अगर आप 1 घंटा पहले फ्लाइट प्लान सबमिट नहीं करोगे तो आपका फ्लाइट प्लान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब अगर आप 9:30 में जाके बोलोगे कि मुझे 10 बजे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना है, तो बोलेगा नहीं मिलेगा अप्रूवल। तो कम से कम 9 o'clock आपको फ्लाइट प्लान भर के अप्लाई कर देना है कि सर हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, बट सडनली यू हैव चेंज्ड कि दिल्ली के बाद कानपुर भी जाएंगे, तो आपने चेंज किया, एक और VI कानपुर ले लिया, तो आप कम से कम 9:30 बजे तक उसको बता दोगे कि सर हमारे फ्लाइट प्लान में एक चेंज है। अगर उसके बाद बताओगे तो बोलेगा फिर मुझे मत बताओ, ठीक है। तो कम से कम आधे घंटे पहले किसी भी टाइप का चेंजेज, 1 घंटा पहले अप्रूवल, प्लस इन रूट, रास्ते में फ्लाई करते टाइम जब मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, तब अचानक से आपको पता चला या कुछ भी प्रॉब्लम फेस हुआ, तो आपने रियलाइज किया कि दिल्ली नहीं जाना है, नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं जयपुर ही चलते हैं। तो इन सच केस अदर देन एनी प्रॉब्लम विद योर एयरक्राफ्ट, ठीक है, आपको कम से कम 15 मिनट पहले, ठीक है, 15 मिनट्स पहले ATC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब आप किसी भी टाइप का चेंज कर सकते हैं। या फिर सपोज आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो बाय द रूट, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आप कई बार ऐसा प्लान करते हो ना, जैसे घर जा रहे हो तो सोचते हो कि मार्केट साइड से जाएंगे या इधर से जाएंगे, फिर क्या होता है कि मन में कुछ दूसरा ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, दूसरे वाले रास्ते से चले जाते हैं, इस टाइप से। तो अगर किसी दूसरे वाले रास्ते से जाना है अदर देन प्री प्लान रूट, तो इन एयर फ्लाई करते हुए अगर आपको रास्ता चेंज करने का मन है बाय एनी मीन्स, तो कम से कम 15 मिनट पहले आपको बताना पड़ेगा ATC को कि सर हमारे फ्लाइट प्लान में किसी भी टाइप का चेंज है। क्लियर टू एवरीवन? याद रह जाएगा अगर पार्ट 2 में पूछे तो। और चल, आई नीड टू डिस्क्राइब वन मोर टाइम। सर एक छोटा समरी दे देते आप फ्लाइट प्लान के बारे में। फ्लाइट प्लान के बारे में या टाइमिंग के बारे में? अगर बताना हो फ्लाइट प्लान के बारे में तो हम कैसे बताएं? अच्छा, इन्फॉर्म करना हो। अगर कोई एग्जामिनर पूछे लेवल 2 में। ओके, गॉट इट। ठीक है। सो इन द यस्टरडेज लेक्चर आई हैव टोल्ड, ठीक है, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड, if somebody will ask what is the flight plan, what does it really mean? So flight plan is basically a document, ठीक है, where you are submitting your flight intention कि हमको अपना एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना है from this point to that point. So flight plan is nothing but a document जो कि आप सबमिट करते हो टू द एयर ट्रैफिक सर्विसेज को। ATC का नाम होता है इन अ ब्रॉड वे एयर ट्रैफिक सर्विसेज। तो आप उसमें अपना फ्लाइट प्लान सबमिट करते हो कि हम एक एयरक्राफ्ट मुंबई से दिल्ली ऑपरेट करना चाहते हैं, लाइक दिस। एंड द मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ फ्लाइट प्लान डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। वो उस देश की गवर्नमेंट या उनके एजेंसी डिसाइड करेंगे कि फ्लाइट प्लान सबमिट कैसे करना है। लाइक इन इंडिया अर्लियर इट वाज अ रिटन डॉक्यूमेंट, हाथ से फॉर्म फिल करके ATC ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता था। देन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो हाथ से फॉर्म फिल कर लो, ऑपरेशन मैनेजर साइन कर देगा या पायलट साइन कर देगा, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट मतलब उसका स्कैन कॉपी PDF आप ईमेल कर देते थे। फिर हमारा टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप हुआ, नाउ वी हैव सेवरल वेबसाइट्स, स्काई वेक्टर वन ऑफ दोज, ठीक है। तो सेवरल वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम फ्लाइट प्लान सबमिट करते हैं टू द
एयर ट्रैफिक सर्विसेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किस देश में फ्लाइट प्लान किस मोड में सबमिट किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा उस देश का अथॉरिटी पे। लाइक इन सम अफ्रीकन कंट्रीज येट वेबसाइट्स आर नॉट देयर, तो वहां पे रिटर्न डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फ्लाइट प्लान सबमिट होता है। So that is the flight planning. Now, in flight plan, there are several informations as I have told, but 13 vital informations are there. कम से कम आपको यह 13 फ्लाइट प्लान के इंफॉर्मेशन याद रखने पड़ते हैं पायलट को, ठीक है, while operating the aircraft. क्या क्या? एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, फ्लाइट लेवल, वेक टर्बुलेंस, किस एयरपोर्ट से फ्लाई करोगे और कहाँ जाओगे, फ्लाइट रूल क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, अल्टरनेट एरोड्रोम, रूट, इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट मॉडल और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है, लाइक मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड और वीआईपी ऑन बोर्ड। तो ये चीज आपको इस फॉर्म में फिल करके या फिर आप डिजिटली भी भरोगे तो प्रिंट आउट इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लाइट प्लान सबमिट हो तो शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर से 1 घंटा पहले, अगर आपने टाइम ऑफ डिपार्चर 10 बजे का प्लान किया है तो कम से कम 1 घंटा पहले आपको फ्लाइट प्लान सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पहले सबमिट नहीं करोगे तो आपका फ्लाइट प्लान रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो फ्लाइट प्लान का इनिशियल सबमिशन एटलीस्ट 1 आवर अगो। देन अगर किसी भी टाइप का चेंज है, ठीक है, सपोज पैसेंजर ऑन बोर्ड थे 2, अभी 2 और पैसेंजर आ गए तो 4 पैसेंजर हो गए, ठीक है। हाँ, ये शेड्यूल डिपार्चर में कह रहे हो 1 घंटे पहले का, या फिर नॉन शेड्यूल में कह रहे हो आप? नॉन शेड्यूल में। शेड्यूल का तो पहले से ही मन 1-1 महीने 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है। ओके। शेड्यूल का तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि दिल्ली एयरपोर्ट हैज गिवन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 0815 टू आकाशा एयर, लाइक दिस। तो शेड्यूल में तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ये नॉन शेड्यूल का बता रहा हूं, ठीक है। हाउएवर जो बेसिक थीम है सबमिशन का वो यही है 1 घंटे पहले का। अब क्या है कि शेड्यूल एयरलाइंस के केस में क्या हो जाता है कि डेली वो एक ही टाइम पे फ्लाई करते रहते हैं, इसीलिए उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज रूल उनके लिए भी सेम है, लेकिन वो फ्रीक्वेंट बायर है, इसीलिए उनके लिए ये एक एडिशनल बेनिफिट है। सपोज आप किसी एक ही दुकान से डेली सब्जी खरीदते हो या दूध खरीदते हो तो वो आपका खाता रख लेता है ना कि सर एक ही महीने में एक बार पेमेंट करना ना, क्यों डेली 5 बार पैसा देते हो। सिमिलरली रूल उनके लिए भी सेम है, बट कंटिन्यूअस ऑपरेटर है तो उनको एक रिलैक्सेशन मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ले लो 6 महीने का। देन तो 1 घंटा पहले आपको फ्लाइट प्लान सबमिट करना है। किसी भी टाइप का चेंज है, ठीक है, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप इन्फॉर्म करो, ठीक है। ये हो गए ग्राउंड के मैटर्स। बट इन द एयर, इन एयर अगर किसी भी टाइप का चेंज है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स प्रायर अप्रूवल चाहिए। जब आप हवा में उड़ गए हो तब किसी भी टाइप का चेंज है तो 15 मिनट पहले रिगार्डिंग द फ्लाइट प्लान। अगर इन सब टाइम से आप, जैसे मान लो कि आप दिल्ली पहुंच के इमीडिएट बोल रहे हो कि वुड लाइक टू फ्लाई फॉर कानपुर, तो बोलेगा चुपचाप दिल्ली लैंड करो, यहाँ मजाक चल रहा है, 1 मिनट पहले इधर 2 मिनट बाद उधर, ठीक है। तो कम से कम 15 मिनट पहले कि सर फ्लाइट प्लान चेंज हो गया है, कानपुर जाना है, तब वो बोलेगा अच्छा ठीक है जाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रैफिक देखना है बेसिकली कि whether any change in your flight plan is going to affect any other traffic or not. Simple. Clear है ये point? ओके सर, क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, very good. So this was the flight plan and all. And for today, we'll move to our further topic, and that I need to see to the syllabus. आज का क्या है? अच्छा, आज का है एरोनॉटिकल फ्रेजेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टू लर्न, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोनॉटिकल फ्रेजेज, बट बिफोर गोइंग दैट लेट मी ओपन वन चार्ट एंड आस्क यू फॉर द ICAO location designator. So be ready for that. We are going to practice ICAO location designator on chart number
2 today. ठीक है, चार्ट नंबर 2 से. So let me open that. Now this is the chart number 2 in front of you, and who is going to tell me the echolocation designator for Delhi? Victor India. Go ahead. Delta Papa. Victor India Delta Papa, very good. ठीक है, for Delhi. For Agra and Gwalior, both. Go ahead, all stations shall participate for the answer. ठीक है, break your hesitation. Be quick for the answering. Do participate, guys. आंसर करने में बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है. टुडे ओनली आई हैड रिसीव्ड वन कॉल, ठीक है, ऑफ अ स्टूडेंट, नॉट बिलोंग्स टू अस, हम लोगों के साथ नहीं था, बट ही वाज सम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ही हैड जॉइंड, और वहां पे भी उसने कभी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किया. सो ही वाज सेइंग कि सर एग्जाम तो पास नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी. ठीक है, सो प्रैक्टिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. तो आप लोगों को वोकल होइए, क्लास में पार्टिसिपेट करिए, आंसर बोलिए. नहीं तो अगर मन में ये सोचोगे ना कि इसका आंसर तो आता है, नहीं भी बोलूंगा तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाएगा आगे. ठीक है, आते हुए चीजों भी लोग नहीं बोल पाते इन द एग्जामिनेशन. तो डू पार्टिसिपेट, भले सिंपल है, डू आंसर. गो अहेड. बताओ आगरा का क्या होगा? सब लोग अनम्यूट करके ट्राई टू गिव द आंसर. Victor India. Victor India Alpha Golf. Golf, very good. Like that, Gwalior. Victor India Golf Alpha. Very good. ठीक है. Then about Lucknow. Victor India Lima Kilo. Lima Kilo, very good. Then Varanasi. Varanasi. Victor India Bravo November. Victor India Bravo November, very good. Okay. Now for the Patna. Victor India Papa Tango. Victor India Papa Tango, नहीं, this is Victor Echo Papa Tango. जो अपना पटना है ना, दिस कम्स इन कोलकाता FIR, ईस्टर्न रीजन. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट गया, जस्ट बिलो द पटना. Victor Echo Golf Darling. इन द रियल इट इज विक्टर एको गोल्फ यांकी. तो इसको आप एज एक्सेप्शन नोट कर लो. ठीक है, विक्टर एको गोल्फ यांकी. अबाउट रांची एंड जमशेदपुर. Victor Echo Juliet Sierra. Very good, that is for Jamshedpur. And about Ranchi, Victor Echo Romeo Charlie. Very good. Then Kolkata. Go ahead, I had given example of this. बताओ क्या था?
विक्टर एको चार्ली हाँ अल्फा। नहीं, वेक्टर एको चार्ली चार्ली, ठीक है। कोलकाता का विक्टर एको चार्ली चार्ली। देन नागपुर VANP एज यूजुअल। भोपाल का एक्सेप्शन है VABP, ठीक है, नॉट VABL, दिस इज VABP। जबलपुर सेम JB चलेगा, एंड खजुराहो VAKJ। सो इन द चार्ट नंबर 2 यू आर हैविंग 4 एक्सेप्शन। कौन कौन से? जस्ट हैव अ लुक। दिल्ली का है VIDP, दैट इज दिल्ली। गया का है VEGY, कोलकाता VECC, एंड भोपाल का है VABP। So these are the 4 exceptions we are having on chart number 2. Done? Rest all logic is same. First and third letter of VR का use करो और आप एयरपोर्ट कोड बना दो। Clear to all? Yes. ठीक है। So this exercise is also complete for today. Now we have to move to our next topic. Done. देखो, whatever the phrase we are going to use in the exam, उसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जब आप एग्जामिनेशन पेपर देखोगे ना, वहां पे एक रूल लिखा होता है कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस या रूल लिखे हुए हैं। कैसे? आंसर ऑल क्वेश्चंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इसी तरह से। ऐसा नहीं कि पहले के बाद डायरेक्ट चौथे का आंसर कर दिए, नो। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यूज हाइपोथेटिकल डाटा, अगर किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है तो आप अपने मन से उसके रिलेवेंस डेटा का यूज कर सकते हो। कैसे? अगर एग्जाम में सपोज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में लिख दिया है खाली एयरबस, तो आप बोल सकते हो एयरबस 320 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब होता है अपने मन से, मनोनीत, तो अपने मन से डेटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर द मैसेज दैट रिक्वायर्ड टाइम, अगर किसी मैसेज में टाइम की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है तो आप वो मेंशन करोगे। कंटिन्यूइंग आंसरिंग टिल द टाइम यू हैव टोल्ड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आपको अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए नहीं बोला जाए तब तक अगले क्वेश्चन का आंसर मत करिए, ठीक है। आंसर करिए और वेट करिए ताकि एग्जामिनर बोलेगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उसके बोले अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना है। एंड usage of aviation language and prescribed phraseology is mandatory, मतलब अगर किसी चीज के लिए एविएशन लैंग्वेज बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल मैंडेटरी है, उसको बाईपास नहीं कर सकते हो। मतलब जब हम रीडेबिलिटी चेक करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाउ डू यू रीड। आप उसके बदले में ये नहीं बोल सकते हो कि एम आई ऑडिबल, बोलने को तो यही बोल सकते हैं ना। हमें क्या बेसिकली चेक करना है? स्ट्रेंथ अपने कम्युनिकेशन का। तो आप फोन करके ये भी बोल सकते हो आवाज आ रही है सर ATC को, या फिर ये भी बोल सकते हो कि एम आई ऑडिबल टू यू। नहीं, क्या बोलना है? हाउ डू यू रीड। अगर किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन का फ्रेज बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल मैंडेटरी है बिना किसी ऑल्टरेशन के। So today we are going to see certain aviation language and phrase. Aviation language consists of Alpha Bravo Charlie Delta वाला alphabetical readout, ठीक है, time and number readout and prescribed phraseologies, जो बताए गए हैं कि इसके बदले आप ये बोल लो, तो हम लोग उसके phrases का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। So what are the phrases? We are going to see one by one. Shall I move to the phrase? या किसी को कोई डाउट है? सर बाई चांस हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन का तो हम उससे पूछ सकते हैं एग्जामिनर से कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, या वही पूछेगा हमसे? डिपेंड्स वेरी गुड, सही डाउट पूछा आपने। एंड इसी टाइप के किसी को भी डाउट आए ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको प्लान करने की जरूरत है। आप नहीं प्लान करोगे तो आपके लिए कौन प्लान करेगा? मैंने तो पैसा ले लिया, अब तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा पढ़ाने पे,
फिर तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लिए प्लान करो, हर एक छोटी से छोटी चीज पे डाउट करो, क्योंकि वो एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि अंटिल यू हैव बीन टोल्ड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। अब एग्जामिनर आ गया अरियल, उसने आपको पहले क्वेश्चन पे ही अटका लिया, तो फिर तो सेकंड पे जाना ही नहीं देगा। अब इस केस में क्या करना है, दिमाग लगाना है। सपोज बाय एनी मीन्स, ठीक है, बट आई विल मेक श्योर कि वैसा नहीं होगा, बट बाय एनी चांस आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नहीं आता है, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आता है। अब तो आप फंस गए कि बिना इसके आंसर किए थर्ड पे तो जाने नहीं देगा। तो उस केस में क्या करो, गलत सलत या फिर जितना आपकी बुद्धि काम करे, जितना आपको सही लगे, किसी भी तरह से सेकंड का आंसर दो, ठीक है। और जब वो क्रॉस क्वेश्चन करे या आपको डिस्कशन करने लगे कि गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप अपने साइड से बोल दो, सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो आपको पीटेगा थोड़ी, बोलेगा ओके कम टू द नेक्स्ट, भले वो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0 नंबर दे, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने का मौका तो दिया, थर्ड का आंसर अच्छे से कर लो। तो अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा वो निकल गया, बदमाशी कर रहा है, जो कि करते हैं, तो आप अपने साइड से बोल दो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ठीक है, वो आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बिना आंसर किए हुए आप उसको बोल दोगे सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेगा नहीं पहले इसका आंसर करो। तो गलत सलत जितना ही आता है उतना ही आंसर कर दो कम से कम, फिर बोलो सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टाइम कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक दिस। क्लियर? यस सर। ठीक है, आई विल टेल यू वन ऑफ माय एग्जांपल, ठीक है। मैंने एक्चुअली आरटी 2 बार में निकाले हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई हैड वेंट फॉर हैदराबाद, जहां पे मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। एक्चुअली ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव सच सिनेरियो कि फर्स्ट टाइम पे वो सीरियस नहीं होते हैं पढ़ने में। तो व्हाइल गोइंग फॉर हैदराबाद सेशन आई वाज नॉट वेरी सीरियस, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। तो लास्ट के 2-3 दिन में इधर उधर के नोट से कुछ इधर आंसर देख के प्रैक्टिस भी नहीं किया था, डायरेक्ट अटेंड कर लिया था एग्जामिनेशन हैदराबाद में। तो आंसर तो मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर आ रहा था, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वाला था, तो मैं रट के पहुंचा था पूरा। 5 नंबर क्वेश्चन तो आ रहा है, कुछ भी हो उसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे ही अटक गया, आंसर ही नहीं आ रहा है, पढ़ के ही नहीं गया था, तो कुछ भी करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो वो बोलता है कि दिस इज द आंसर, आर दिस द वे टू आंसर द कॉल, ये तुम्हें कॉल करने आता है, कहाँ से पढ़े हो? मैंने मन ही मन सोच रहा था पढ़ा तो हूं नहीं, अब कैसे आगे बढ़ूं। मैंने अपने साइड से बोला सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है नो आंसर दिस फर्स्ट। मैंने बोला सर आंसर आई हैव डन, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर बोलता है ओके कम टू द नेक्स्ट। फिर दूसरे का भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वो बोलता है कि यार तुम्हें आंसर करना नहीं आ रहा है, कहाँ से प्रैक्टिस किया हो, किसने पढ़ाया? देन आई टोल्ड सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है ओके कम कम टू द नेक्स्ट, लाइक दैट। मुझे थर्ड क्वेश्चन आ रहा था, वो एक मेडे कॉल था, आई वाज गोइंग टू दैट। तो थर्ड का आंसर किया, फोर्थ का आंसर किया, फिफ्थ का आंसर किया, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन जंप, ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक अ लिटिल रिस्क। रिस्क इन द सेंस डरना नहीं है, नॉट फॉर अ वाइल। वो वहां पे आपको रूल करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, आपका एग्जाम लेने के लिए बैठा हुआ है। तो आपके मन में कोई सा भी इंटेंशन आए, और टाइम हमेशा चल रहा है आपके लिए, आधे घंटे का ही टाइम है, तो थोड़ा सा भी अटके, हेजिटेशन हो, तुरंत बोलो सर टाइम कम है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना, लाइक दिस। एंड दिस विल वर्क, दिस हैड वर्क फॉर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस वे यू कैन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट गलत सलत जैसे भी हो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, बिना आंसर किए अगले पे नहीं जा सकते, ठीक है। ओके Done. So this was about the going to the next question. And aviation physiology is mandatory.
अभी मैं बताऊंगा वॉट एवर द एविएशन फ्रेजेज आर देयर, यूजेस ऑफ दोज फ्रेजोलॉजी आर मैंडेटरी। अगर आप उसके बदले में कुछ दूसरा बोलोगे, नंबर नंबर कटेगा। बेसिकली देयर आर 20 ओनली, ठीक है, टोटल 20 फ्रेजेस ही बनाए गए हैं, और आप उसके यूज टू हो जाओगे, बहुत ज्यादा यूज टू हो जाओगे, ट्रस्ट मी। सो आरटी सेज, ठीक है, रूल्स फॉर द आरटी सेज यूज रिकमेंडेड फ्रेजोलॉजीज, मतलब जो फ्रेजेज उसने बनाए हैं उसका यूज करिए, और अगर किसी सेंटेंस के लिए फ्रेज नहीं बना है तो आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करिए, ठीक है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करिए। ऐसा नहीं कि शशि थरूर वाला इंग्लिश यूज कर लिया, बट एग्जामिनर को ही समझ में नहीं आएगा, बोलेगा क्या बोल दिया यार, ठीक है। तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और छोटे छोटे वर्ड्स, वोकेबुलरी में हेवी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। सो वी आर गोइंग टू सी phrases and words, ठीक है, how many phrases are there and for what phrase what word has been prescribed. So instead of saying a long thing, ठीक है, you can say a very simple thing, very simple word, ठीक है। बेसिकली शॉर्टकट में बोलने के लिए आपको फ्रेज बताए गए हैं, ठीक है। सो द very first one, something is acknowledge। एक्नॉलेज का मतलब है, ठीक है, कि लेट मी नो यू हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड दिस मैसेज। मतलब आपको किसी भी टाइप का परमिशन आया और वापस आपसे उसने आपसे पूछ लिया, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 मेंशन करते हैं ना, तो हम उससे बोलते हैं रीड बैक दो, मतलब बोल के बताओ कि आपने मेरा मैसेज सुना है और समझा है। सिमिलरली एक्नॉलेज करिए, मतलब रीड बैक दीजिए कि हाँ मैंने आपके मैसेज को सुन लिया है और समझ भी लिया है। तो अगर उसमें कुछ पैरामीटर दिया गया है तो आप उसको बोल के बताइए, ठीक है। तो सपोज आपको एटीसी बहुत सारा पैरामीटर बोल रहा था, उसी बीच में उसने बोला रनवे विजुअल रेंज 200, विंड्स 20 नॉट्स, ठीक है, टेम्परेचर 37 डिग्री, ह्यूमिडिटी 60, लाइक दिस, और बोला एक्नॉलेज रनवे विजुअल रेंज, मतलब आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स रनवे विजुअल रेंज को उसने हाईलाइट किया है, तो आप रनवे विजुअल रेंज का रीड बैक दे दीजिए। रनवे विजुअल रेंज इज 200 विक्टर टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा। ये हो गया एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैंने आपकी चीजों को सही से सुना और समझा। सो एक्नॉलेज इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं ना कि समझ में आया, पक्का सब कुछ क्लियर है, सबको सारा डाउट क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेरी, तो इसके बदले में मैं एक चीज बोल सकता हूं, एक्नॉलेज दिस टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। तो मैं चाहूं तो सीधे एक सेंटेंस में काम खत्म कर सकता हूं, एक्नॉलेज फ्लाइट प्लानिंग इज क्लियर टू ऑल, तो आप लोग बोल देंगे हाँ क्लियर है, ठीक है। सो एक्नॉलेज मीन्स लेट मी नो दैट यू हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। डन। एक्नॉलेज इट, क्लियर है, ठीक है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि एक्नॉलेज करो तो आपने बोला यस सर, ठीक है। आरटी में यस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अफर्म, ठीक है, कि जब आपको, हाँ जब आपको ठीक है, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, ओके, जब आपको यस बोलने की जरूरत पड़े तो आप उसके बदले बोलो अफर्म, कि हाँ, ठीक है। तो यस को रिप्लेस किया जाता है विद अ सेंटेंस अफर्म, और नो को रिप्लेस किया जाता है विद अ सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। हालांकि नेगेटिव हैव मल्टीपल मीनिंग्स, सो वन ऑफ मीनिंग फॉर द नेगेटिव इज नो। यस बोलना पड़े तो बोलो अफर्म, नो बोलना पड़े तो बोलो नेगेटिव। देन समथिंग इज अप्रूव्ड एंड समथिंग इज क्लियर्ड, इन दोनों को अच्छे से समझो।
सपोज आपने किसी टाइप का परमिशन मांगा, ठीक है, तो आपको उस चीज का अप्रूवल मिल रहा है। मीन्स यू हैव आस्क्ड फॉर द इंजन स्टार्टअप ऑन हाई पावर रन अप, तो उधर से बोला इंजन रन अप्रूव्ड, आपको इंजन रन अप्रूवल मिल चुका है। अब चाहो तो आप अपना आरपीएम ग्रेजुअली इंक्रीज करो या हाई पावर पे डायरेक्ट ले जाओ। मीन्स आपको जो परमिशन मिला है वो आप करने के लिए फ्री हो, जिस भी मेथड से करो। आपको बोला गया है कि दिल्ली से मुंबई जाओ, तो आपको फ्लाइट प्लान अप्रूव कर दिया एक तरह से, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग, अगर आपको बोल दिया दिल्ली से मुंबई जाओ, तो चाहे जैसे भी जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, फ्लाइट से जाओ, दौड़ के जाओ, नाव से जाओ, जैसे जाना है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अप्रूवल। आपने जो रिक्वेस्ट किया उस चीज का परमिशन मिल गया है। कैसे करना है उस पे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं है। सो दैट इज नोन एज अप्रूवल और अप्रूव्ड। बट इफ समथिंग इज क्लियर्ड, क्लियरेंस, इसका मतलब होता है कि परमिशन तो मिला लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैव बीन स्पेसिफाइड, ठीक है, कुछ कंडीशन लगा दिए कि दिल्ली से मुंबई जाओ लेकिन रोड से जाओ, पानी से नहीं जा सकते, ठीक है, बाय रोड जाओ, बाय ट्रेन जाओ, लाइक दैट। तो इसका रियल एग्जांपल क्या है? सपोज आपको बोला गया आपका फ्लाइट प्लान अप्रूव हो गया, मतलब आपने फ्लाइट प्लान में जितने सारे पैरामीटर लिखे थे उसको एक्सेप्ट कर लग गया। अब अगर आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड है 23,000 फीट, तो आप चाहो तो दिल्ली के ऊपर ही डायरेक्ट 23,000 पे चले जाओ, अगर आपका एयरक्राफ्ट परमिट करता है तो, अगर आपका एयरक्राफ्ट कैपेबल है, या फिर धीरे धीरे 23,000 पे पहुंचो, या फिर दिल्ली से जैसे ही बाहर निकले तुरंत पहले 23,000 फीट पे पहुंच गए। सो इट इज अप टू यू, जैसे जाना है जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बोला गया क्लियर फॉर टैक्सी, ठीक है, टिल रनवे 23, ठीक है, वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, कि टैक्सी तो करो, रनवे तक तो जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 टैक्सी वे के थ्रू, अल्फा चार्ली और डेल्टा, ब्रेवो पे नहीं जा सकते, गोल्फ पे नहीं जा सकते। तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस। मतलब आपको अप्रूवल मिला बट सर्टेन कंडीशंस हैज बीन स्पेसिफाइड, कुछ कंडीशन लगा दिया आपके पीछे। क्लियर? सो दिस इज नोन एज क्लियरेंस। तो अप्रूवल और क्लियरेंस में दो डिफरेंस। अप्रूवल तरीका कुछ भी यूज करो, काम करने के लिए आप फ्री हो, बट इन द क्लियरेंस सर्टेन कंडीशंस हैज बीन स्पेसिफाइड कि ऐसे ही करो। डन? यस सर। ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक, ठीक है। फॉर नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो फॉर नाउ यू कैन नोट इट कि दो चीज मैंने नहीं बताया, ब्रेक और ब्रेक ब्रेक, ठीक है, नोट कर लो, कॉपी के पीछे में लिख के रख लो, आई विल टेल द लेटर ऑन। अगर मैं भूल गया तो आप लोग याद दिलाओ, आई थिंक मैं ही खुद ही नहीं भूलूंगा, ठीक है। बट ब्रेक और ब्रेक ब्रेक बाद में बताता हूं। कैंसिल, कैंसिल मीन्स annul the previously transmitted clearance और nullify, आपको अप्रूवल दिया था बट अब प्रॉब्लम आ गया है, इसको कैंसिल कर दीजिए। मतलब आपको इंजन स्टार्ट करने का परमिशन मिला था बट पीछे छोटा एयरक्राफ्ट आ गया सडनली, तो आपको बोलेगा ग्राउंड ऑन कैंसिल, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ी देर बात करना। तो ये कहते हैं कैंसिल। देन चेक, चेक मतलब होता है टू एग्जामाइन अ सिस्टम और टू एग्जामाइन अ प्रोसीजर। वी आर डूइंग रीडेबिलिटी चेक, किस चीज के लिए? एग्जामाइन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारे एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड टू चेक द प्रोसीजर एज वेल, हमको किसी ने बोला था कि एटीसी को अगर कॉल करोगे ना तो रिप्लाई देगा, दे रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को भी चेक किया हमने। डन? सो चेक का मतलब टू एग्जामाइनिंग आदर ए सिस्टम और अ प्रोसीजर। क्लियरेंस हो ही गया था। नाउ समथिंग इज कंफर्म,
ठीक है, समथिंग इज कन्फर्म। अब देखो, कन्फर्म इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ना, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? समथिंग इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें एक पॉजिटिव मीनिंग है। देन आता है निगेटिव सेंटेंस, राम इज नॉट अ बॉय। ठीक है, राम एक लड़का नहीं है, निगेटिव सेंटेंस। देन आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इज राम अ बॉय, क्वेश्चन मार्क, कि क्या राम एक लड़का है? सो दैट इज इंटेरोगेटिव। सिंस एक्नॉलेज इज ऑल्सो इंटेरोगेटिव, कि मैंने जो बताया सुने हो कि नहीं? सिमिलरली कंफर्म इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि मैंने जो आपको क्लियरेंस दिया है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, या जिस भी टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर किया है, आपको सही से सुनाई दिया या नहीं? तो 4-5 इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देगा, या फिर आपसे कुछ पूछेगा तो बोलेगा कंफर्म योर एयर स्पीड, या फिर आपको बोलेगा कंफर्म योर कॉल साइन। ठीक है, बोल देगा विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा, कंफर्म योर कॉल साइन इज आई फ्लाई 172। मतलब आप जिस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हो वो इंडिगो का 172 है, तो आप बोलोगे अफर्म। उसने क्या पूछा? कंफर्म योर कॉल साइन इज। कंफर्म मतलब ही रिक्वेस्टिंग फॉर द वेरिफिकेशन, वो आपसे इंटरोगेट कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या आपके जहाज का कॉल साइन आई फ्लाई 172 है? तो आप बोलोगे हाँ या ना, अफर्म और निगेटिव। क्लियर? सो कंफर्म और एक्नॉलेज में अंतर समझ में आया? एक्नॉलेज के टाइम पे डेटा वो खुद देगा कि 4-5 चीजें बता रहा हूं, इसमें से कोई एक चीज मुझे वापस रीड बैक दो, तो वो हो गया एक्नॉलेज। कंफर्म में डायरेक्ट वो आप ही से पूछ रहा है कि आपका कॉल साइन क्या था। डन? सर एक बार दोबारा बताना। ओके, वेरी गुड। एक्नॉलेज और कंफर्म दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों क्वेश्चन मार्क्स है। लेकिन एक्नॉलेज में डेटा जो ट्रांसमीटर है वही प्रोवाइड कराएगा। वो बोलेगा टेम्परेचर 373 डिग्री फॉर एन एग्जांपल, ह्यूमिडिटी 60, विंड स्पीड 20 नॉट्स, रनवे विजुअल रेंज 200, और इसमें से बोल देगा, ठीक है, कि एक्नॉलेज रनवे विजुअल रेंज। मतलब हमने जो अभी बताया उसमें से रनवे विजुअल रेंज मैंने क्या बोला, आप उसको रिपीट करिए। तो ये हो गया एक्नॉलेज। बट कंफर्म इज सच ए इंटरोगेटिव सेंटेंस कि वो आप ही से पूछ देगा कि कंफर्म टेम्परेचर। ठीक है, कंफर्म कंप्रेट टेम्परेचर, तो आप अपने एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट में आउटसाइड एयर टेम्परेचर का गेज देखोगे और बोलोगे टेम्परेचर 73 डिग्री। दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब है इंटरोगेशन, क्वेश्चन ही पूछना। लेकिन एक्नॉलेज में आंसर खुद ट्रांसमीटर ने दिया और उसमें से कोई एक चीज आपसे क्रॉस चेक करवा रहा है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कंफर्म, मीन्स आपको वो आंसर देने को कह रहा है। डन? यस। ऑल अदर स्टेशंस प्लीज हैव अ क्लियर Affirm, आइडेंटिफिकेशन sir. ऑफ दिस। फिर से बताने की जरूरत है। टेंगो नवंबर सियरा, एनी अदर स्टेशंस? No, sir. Negative. ठीक है, सो दिस इज कंफर्म एंड एक्नॉलेज। तो आपसे वो पूछेगा कंफर्म योर कॉल साइन इज अल्फा ब्रेवो चार्ली, आप बोलेंगे हाँ मेरा कॉल साइन यही है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ कंफर्म। देन समथिंग इज कॉन्टैक्ट। सपोज आप छुट्टी लेने जाते हो अपने टीम में, तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बोलते हो कि सर इस सैटरडे नहीं आऊंगा, तो बोलता है कि मेरे को नहीं, लाइन मैनेजर को बताओ या स्टेशन मैनेजर को बताओ। तो वो क्या बोलना चाहता है? कॉन्टैक्ट स्टेशन मैनेजर, या बोलेगा कॉन्टैक्ट एचआर, लाइक दैट। मीन्स ही जस्ट वांट टू से कि एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ टू द पर्सन जिसका वो नाम लेगा। जैसे मान लो कि आपने कभी मेरे से पैसा मांगा कुछ भी,
फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, तो मैं बोलूंगा कॉन्टैक्ट मुकेश अंबानी, ठीक है, कि मुकेश अंबानी से बात करो, उसके पास पैसे हैं। सो सिमिलरली कॉन्टैक्ट मीन्स गो एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ। कॉन्टैक्ट, सपोज आपने दिल्ली ग्राउंड को कॉल किया, ठीक है, और उससे पूछा कि व्हाट इज द करेंट टेम्परेचर, तो बोलेगा कॉन्टैक्ट दिल्ली टावर, मतलब हमको नहीं पता है, टावर से पूछ लीजिए, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट मीन्स उससे बात करो। देन समथिंग इज करेक्ट। अब करेक्ट को अफर्म के साथ मिला के समझिए। अफर्म इज अ सिंपल आंसर यस, ठीक है, बट करेक्ट इज अ आंसर यस along with certain पैरामीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, आपसे पूछेगा whether your call sign is अल्फा ब्रेवो चार्ली, आप बोलोगे अफर्म, वी आर अल्फा ब्रेवो चार्ली, ठीक है। बट वहीं पे एटीसी आपसे पूछा, ठीक है, कि अल्फा ब्रेवो चार्ली कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 32,000 फीट, मतलब आप 32,000 फीट पे हो, तो यहां पे आप अफर्म नहीं बोल सकते, वो एक ज्यादा कैजुअल आंसर हो जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा करेक्ट, कि हाँ मेरा अल्टीट्यूड 32,000 फीट ही है। तो अगर किसी भी वेरिफिकेशन में कोई पैरामीटर नहीं है तो आप सीधे बोल दो यस, बट अगर कोई पैरामीटर है तो उस केस में आप बोलो करेक्ट, कि हाँ तुमने ये जो डेटा दिया ना ये सही डेटा है, यानी हमारा अल्टीट्यूड 32,000 फीट ही है। जब नॉर्मल नाम पूछे, एड्रेस पूछे, ऑपरेटर का नाम पूछे, तो यस नो चलेगा, बट अगर कुछ डेटा पूछ रहा है तो उस केस में बोलना है करेक्ट। क्लियर? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ब्रावो चार्ली डेल्टा पक्का क्लियर? From sir. ठीक है। सो करेक्ट सिमिलर एज अ अफर्म काम करता है, बट अगर हमारे वेरिफिकेशन वाले कॉल में किसी भी टाइप का पैरामीटर आ गया है तो उसको हम करेक्ट बोल के आंसर देते हैं, अफर्म ज्यादा कैजुअल हो जाता है उस केस में। देन समथिंग इज करेक्शन, इसका आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। जैसे मान लो पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ मिस्टेक कर दी तो बोलता हूँ ना कि सॉरी ये नहीं था, ये था। सिमिलरली वी आर यूजिंग करेक्शन। करेक्शन मतलब कि हमसे कुछ एरर हो गया है, हमसे कुछ मिस्टेक हो गया है, उसको हम सुधार के दूसरा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो सपोज व्हाइल ट्रांसमिटिंग योर कॉल आपने बोल दिया करंट एयर स्पीड इज 300 नॉट्स, फिर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखा कि अरे ये तो 200 ही है, तो आप उसको बोले करेक्शन एयर स्पीड 200 नॉट्स, मतलब हमने जो 300 बोला वो गलत बोला गया था, अभी सही बोल रहा हूं 200, तो इसको बोलते हैं करेक्शन। सपोज आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, जिस भी सेंटेंस के बाद, ठीक है, आपने बोला एयर स्पीड 300, फिर आपने बोला करेक्शन, तो जैसे ही आपने बोला करेक्शन तो सबसे लास्ट वाला कम्युनिकेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी वर्ड के बाद आप करेक्शन बोलोगे उससे पिछला वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, यानी शॉर्ट करेक्शन के लिए, छोटे मोटे मिस्टेक्स के लिए आप करेक्शन बोलते हो, और करेक्शन जब यूज करोगे तो सबसे लास्ट वाला ट्रांसमिशन आपका कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। सपोज आपने 5 लाइन का आंसर दिया, 5 पैराग्राफ का आंसर दिया, फिर आपने बोला करेक्शन, तो 5वां पैराग्राफ खाली कैंसिल होगा, और करेक्शन बोलने के बाद जितने पैरामीटर को आप रिपीट करोगे उतने पैरामीटर ही करेक्ट किए जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, सपोज एटीसी बोल रहा है टेम्परेचर 73 डिग्री, आरवीआर 200, ठीक है, ह्यूमिडिटी 60, गस्टिंग 500, ठीक है। फिर उसने बोला रनवे इन यूज रनवे 27, करेक्शन, तो जैसे ही उसने बोला करेक्शन तो रनवे 27 कैंसिल, करेक्शन रनवे 26, तो ये सब कुछ वैलिड है, कैंसिल कितना हुआ, सिर्फ लास्ट वाला।
तो करेक्शन बोल के हमने क्या बोला, रनवे 26, यानी रनवे 26 खाली कैंसिल, यानी लास्ट वाला करेक्शन जो पोर्शन कैंसिल किया जाएगा करेक्शन बोल के, बाकी सारा पोर्शन आपका वैलिड है। समझ में आ गया? ब्रावो चार्ली डेल्टा टेंगो नवंबर सियरा, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो करेक्शन जब आप बोलते हो तो लेटेस्ट कन्वर्सेशन को कैंसिल किया जाता है, और करेक्शन वर्ड यूज करने के बाद आप जिस भी पैरामीटर को रिपीट करोगे उसी को रिप्लेस किया जाएगा। सपोज यहाँ पे आपने बोला एयर स्पीड 300, करेक्शन 200, मतलब ये 300 कट हो गया, यहाँ पे अब आ गया 200। एयर स्पीड कैंसिल नहीं किया, ठीक है। दो वर्ड अगर मान लो, एयर स्पीड और 300, दो अलग अलग अगर आप वर्ड मानो, तो आपने करेक्शन के बाद क्या बोला 200, तो सिर्फ 300 रिप्लेस हो गया, एयर स्पीड वहीं का वहीं है, ठीक है। तो करेक्शन बोलने के बाद जितने डेटा को आप रिपीट करोगे, करेक्शन से पहले उतने डेटा को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाय द यूज यू विल बी नोइंग मच कि करेक्शन का क्या यूज है, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। देन समथिंग इज डिसरिगार्ड। करेक्शन में क्या हमने देखा कि सिर्फ लास्ट लाइन कैंसिल होता है, बट डिसरिगार्ड में पूरा का पूरा मैसेज ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर कंप्लीट ट्रांसमिशन, मतलब मुझे कॉल करना था बेंगलोर टावर को, मैंने कॉल कर दिया बेंगलोर ग्राउंड को, तो एक काम करिए, डिसरिगार्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपको बोलना पड़ेगा बेंगलोर टावर डिसरिगार्ड विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। आप कह रहे हो बेंगलोर टावर को कि कैंसिल कर दीजिए क्या, ब्रेवो चार्ली डेल्टा का कॉल। तो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन अगर गलत एटीसी को चला गया तो आप बोलोगे डिसरिगार्ड। होता है एग्जाम में कई बार, आप पूरा का पूरा कॉल ही गलत देने लग जाते हो, तो उस टाइम पे आप बोलो डिसरिगार्ड। सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर फिर से करूंगा, डिसरिगार्ड यानी पूरा का पूरा कॉल कैंसिल कर दीजिए। मैं फ्रेश आंसर देता हूं। डन। डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड डिसरिगार्ड क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। देन समथिंग इज हाउ डू यू रीड। एग्जैक्ट हमने पहले दिन में देखा, व्हाट इज द रीडेबिलिटी ऑफ माय ट्रांसमिशन। सो हाउ डू यू रीड इज एन स्टैंडर्ड फ्रेज। तो कल से आपको फील्ड में चाहे कोई कितना भी सीनियर एएमई हो, कोई कितना भी सीनियर फोरमैन हो, अगर वो बोले कि हाउ डू यू रीड मी बोलते हैं, ठीक है, तो आप हंस के टाल दो कि ठीक है सर, अच्छी बात है, आपके सामने हाउ डू यू रीड मी बोलो, मैं हाउ डू यू रीड बोलूंगा, ठीक है। कुछ लोग अड़ जाते हैं, आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर स्टबबर्न ऑन दिस कि नहीं हाउ डू यू रीड मी होता है, बोलता हूं। आप जानो, आपका नॉलेज आपको मुबारक, मुझे इतना ही पढ़ाया गया है कि हाउ डू यू रीड इज द करेक्ट फ्रेज फॉर रीडेबिलिटी ऑफ माई ट्रांसमिशन, एंड वॉट एवर द फ्रेज वी आर लर्निंग टिल द टाइम, इसमें किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इसको करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो आपको करेक्शन ही बोलना पड़ेगा। अगर आपने करेक्टिंग भी बोला ना, करेक्टिंग, उस चीज को वैल्यू ही नहीं देगा, बोलेगा ये हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, करेक्टिंग हम नहीं जानते हैं, हमको चाहिए वर्ड करेक्शन, ठीक है। डिसरिगार्ड ही बोलना है। कुछ लोग मेल में डिस्कार्ड वर्ड सुनते होंगे, लोग बोलते हैं ना डिस्कार्ड कर दो, मतलब उसको फेंक दो। डिस्कार्ड भी बोलोगे नहीं मानेगा वो, उसको सुनना है डिसरिगार्ड। तो फ्रेज एज इट इज यूज करना है, किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सो हाउ डू यू रीड मीन्स व्हाट इज द रिलेटिव ऑफ माई ट्रांसमिशन। देन अगेन हैव अ लुक, समथिंग इज से अगेन एंड आई से अगेन, ठीक है। नाउ से अगेन, ठीक है, नीचे वाला देखते हैं। से अगेन इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको कुछ समझाया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलोगे सर से अगेन मीन्स आप चाहते हो कि मैं उस चीज को रिपीट करूं। आपने क्वेश्चन किया मेरे से कि रिपीट करिए सर प्लीज, तो आप बोलोगे से अगेन, ठीक है। यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो सामने वाले आंसर को कि फिर से बोलिए। बट
अगर आप किसी चीज को दोबारा से बोल रहे हो तो आप उसको लिखोगे आई से अगेन, कि मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्लैरिटी के लिए, एम्फेसाइज के लिए। जैसे आज से 2-3 दिन पहले मैं इसे खुले में क्या कहते हैं, खुले में बोलता था ना, ऐसे हवाबाजी करता था कि 10th इज द लास्ट डेट फॉर डेमो क्लास, 10th इज द लास्ट डेट ऑफ डेमो क्लास। मतलब मैं उस चीज पे जोर दे रहा था कि 10 के बाद से डेमो क्लास नहीं होगा। ठीक है? सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज रिपीटिंग। क्यों? फॉर एम्फेसाइज, जोर देने के लिए कि 10 के बाद स्टूडेंट आओगे एडमिशन नहीं लूंगा। ठीक है? या फिर क्लैरिटी के लिए, आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ 10 तक में ही हम एब्सेंट मार सकते हैं, 10 के बाद हमको डेली क्लास करनी पड़ेगी, लाइक दिस। सो आई वाज गिविंग एम्फेसाइजिंग एंड क्लैरिटी, इसलिए हम दो दो बार बोलते हैं। सपोज आप कभी मेला वगैरह में देखते होगे या पुलिस वगैरह जब भीड़ खाली करवाती है तो बोलते हैं ना कि पुरुष पुरुष के लाइन में रहे और महिलाएं महिलाओं के लाइन में रहे। इज दैट बिकम टू हिंदी? एनी साउथ इंडियन पीपल? नो। पुलिस आर सेइंग कि ऑल मेल्स आर मेंटेन द मेल वाला लाइन, ठीक है, जेंट्स लाइन, नोबडी विल गो टू लेडीज लाइन। तो उस चीज को दो बार बोलेगा। आई रिपीट, ऑल मेल्स शैल बी लाइंड इन द जेंट्स लाइन, इस टाइप से। या फिर सपोज कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है तो बोलेगा कि नोबडी विल क्रॉस द रोड। आई रिपीट, नोबडी विल क्रॉस द रोड। मीन्स वो क्या कर रहा है, वो जोर दे रहा है इस बात पे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कोई भी आदमी रोड क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है? सो ही इज सेइंग इट अगेन। सो दो चीज, आई से अगेन एंड से अगेन। आई से अगेन, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। से अगेन, आप दोबारा से बोलिए। क्लियर टू ऑल? यस। ठीक है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन इज मेंटेन्ड एंड मॉनिटर। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म इन दोनों का चलता है। MNTN is the short form for maintain. MNTR is the short form for monitor. क्या है? बहुत सिंपल मीनिंग है। मेंटेन मीन्स कंटिन्यू इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन स्पेसिफाइड। आपको बोल दिया गया है कि 26,000 फीट पे फ्लाई करो तो उसी अल्टीट्यूड को मेंटेन करो, ऊपर नीचे नहीं जाना है। ठीक है? देन मॉनिटर, मॉनिटर मीन्स लिसन आउट ऑन, वॉच फ्रीक्वेंसी। सपोज कई बार जब न्यूज वगैरह आता है या कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग होती है तो हम लोग बोलते हैं ना कि सेट मैक्स पे देखो, वहां पे ये आईपीएल आ रहा है। ठीक है? पहले हम लोग सेट मैक्स पे आईपीएल देखा करते थे। या फिर बोलते हैं आज तक लगाओ ना, वहां पे न्यूज आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है, लाइक दैट। सिमिलरली अगर किसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन हो रहा है तो आपको एटीसी बोलेगा मॉनिटर 118.5। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके सुनिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया जाएगा। ठीक है? सो मॉनिटर मीन्स लिसन आउट ऑन या फिर वॉच आउट, ध्यान रखो, इस फ्रीक्वेंसी को देखो। ठीक है? सो दैट इज मॉनिटर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज आउट ऑफ ऑल द फ्रेज इज नेगेटिव। नेगेटिव के 4 मीनिंग और ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है। ठीक है? पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में नेगेटिव के 4 मीनिंग। पहला, नो। अगर आपको नो बोलना है तो आप बोल दो नेगेटिव। आपने ग्राउंड रन का अप्रूवल मांगा, अगर उसको परमिशन नहीं देना है तो बोलेगा नेगेटिव, मींस आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा गया और वो सही नहीं है तो आप बोलो नेगेटिव। लाइक बोला गया कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 32,000 फीट, बट एक्चुअल में आपका अल्टीट्यूड है 30,000 फीट, तो आप बोलोगे नेगेटिव, इट इज 30,000 फीट। तो यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? दैट इज नॉट करेक्ट, यानी 32,000 फीट करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट इंफॉर्मेशन है 30,000 फीट। देन समथिंग इज नॉट कैपेबल, मीन्स हमारा एयरक्राफ्ट इतना कैपेबल नहीं है, उस केस में बोलेंगे नेगेटिव। आपको एटीसी ने बोला कि क्लियर फॉर टेक ऑफ विद इन 0.1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर टेक ऑफ कर जाओ, और अभी आप एप्रॉन पे ही हो,
तो आप बोलोगे नेगेटिव, मतलब नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा। डन। या फिर सपोज एक रनवे का आधा एरिया डिस्टर्ब्ड है, किसी रीजन से प्रॉब्लम में है, तो आपको बोलेगा कंफर्म शॉर्ट रनवे टेक ऑफ, या फिर आपको बोलेगा ब्रेवो चार्ली डेल्टा क्लियर फॉर टेक ऑफ ऑन हाफ ऑफ द रनवे, मतलब आधे रनवे से ही आपको टेक ऑफ करना है, कर पाओगे? तो आप बोल सकते हो नेगेटिव, मतलब हम आधे रनवे से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, हमारा जहाज कैपेबल नहीं है। सो नेगेटिव के 4 मीनिंग, चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो, ठीक है, नो, परमिशन नॉट ग्रांटेड, दैट इज नॉट करेक्ट, एंड नॉट कैपेबल, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने डेट इज नॉट करेक्टेड लिख दिया है, तो आप लोग इसको डेट इज नॉट करेक्ट समझना, ठीक है, here is one typing error. Then something is read back. As I said, अगर आपको किसी भी टाइप का पैरामीटर, किसी भी टाइप का डेटा शेयर किया गया है, तो आप उसका रीड बैक दीजिए, मीन्स आप रिपीट करिए आइदर ऑल और एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द मैसेज एग्जैक्टली एज रिसीव्ड, जैसा आपने सुना वैसा ही आप बताइए, इसमें अपने टाइप से इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिस्टेक कोई भी कर सकता है, तो आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने सुना एग्जैक्टली उसको रिवर्ट बैक करिए, ऐसा नहीं सोचना है कि उसने गलत बोल दिया होगा, नहीं, गलत बोला है तो वो उसका सजा भुगतेगा, ठीक है। तो रीड बैक मीन्स रिपीट एग्जैक्टली एज रिसीव्ड, जैसा सुना वैसा ही बोलो, ठीक है। देन समथिंग इज रिक्लियर्ड, मतलब आपको क्लियरेंस मिल चुका था पहले, लेकिन आपका वो परमिशन कैंसिल नहीं किया है। कैंसिल में क्या था कि कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया, फ्रेश अप्रूवल देगा, लेकिन रिक्लियर्ड मतलब होता है कि आपका उसने कैंसिल नहीं किया है, कुछ चेंज ला दिया है। सपोज आपको पहले बोला था क्लियर फॉर टेक ऑफ एट 1030, बट अब बोलेगा रिक्लियर्ड फॉर 1045, मतलब हमने आपका टेक ऑफ कैंसिल नहीं किया है, लेकिन 15 मिनट बाद जाओ, ठीक है, टाइम चेंज हो गया है। तो किसी भी टाइप का चेंज है उसको वो नोटिफाई करेगा थ्रू द वर्ड रिक्लियर्ड कि अ चेंज हैज बीन मेड। डन। तो आपका लास्ट ट्रांसमिशन उस टाइम पे कैंसिल माना जाएगा और नया अप्रूवल आपके लिए ये रहा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिक्लियर्ड, दोबारा से आपको नोटिफाई किया जा रहा है रिगार्डिंग द चेंज, कैंसिल नहीं किया, एक चेंज है छोटा सा। देन समथिंग इज रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है पास मी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ हाँ, गो अहेड। करेक्शन में और रिक्लियर्ड में क्या डिफरेंस हाँ, वेरी रहेगा? गुड, वेरी गुड। करेक्शन इंडिकेट करता है कि एक मिस्टेक हो गया था, लेकिन रिक्लियर्ड इंडिकेट करता है मिस्टेक नहीं हुआ था, पहले हमने सोच समझ के ये फैसला लिया था, अभी हम सोच समझ के दूसरा फैसला ले रहे हैं, वो मिस्टेक नहीं है। हम इस चीज की पुष्टि करते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं कि पहले हमने आपको बोला था कि 10:30 बजे कैंसिल कर लो, तो आपने 10:30 बजे मान के समझ लिया। रिक्लियरेंस आपको कुछ देर के बाद मिलेगा, इमीडिएट नहीं। 10 मिनट बाद फिर से कॉल आया था कि अच्छा भैया, आपने 10:30 बजे का परमिशन मांगा था ना, आपको 10:45 का परमिशन दे रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। करेक्शन इमीडिएट, मिस्टेक हो गया, कुछ बोलते बोलते गलती से बोला गया, तो करेक्शन। डन। ओके So that is recleared and correction. Very good. Likewise, only you need to ask the doubt. Then something is report. Report means pass me the information. ठीक है, आपको बोला रिपोर्ट योर अल्टीट्यूड, मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल पे देखिए, अल्टीमीटर जितना दिखा रहा है मुझे पास करिए इंफॉर्मेशन, मुझे बताइए। देन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स आप पूछना चाह रहे हो कुछ भी चीज, आई शुड लाइक टू नो और आई विश टू ऑब्टेन, मुझे किसी चीज का परमिशन दीजिए या मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ। रिक्वेस्ट टेम्परेचर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस, आई विश टू ऑब्टेन टेक ऑफ क्लियरेंस, मुझे टेक ऑफ क्लियरेंस का परमिशन चाहिए।
ठीक है, तो आइदर मुझे वो दीजिए या मुझे वो बताइए, दोनों केस में रिक्वेस्ट। ठीक है, देन समथिंग इज रॉजर। रॉजर को आप जितना समझने की कोशिश करोगे उतना आपको कॉम्प्लेक्स लगता रहेगा हमेशा। ठीक है, किसी ना किसी वर्ड दूसरे फ्रेज के मीनिंग के साथ ये क्लैश करता रहेगा हमेशा। सो रॉजर को समझने का सबसे सिंपल व्यवस्था है, जब आपको ओके बोलने का फील हो उस केस में बोला करो रॉजर। ठीक है, डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत सारा ऐसा मोमेंट आता है ना जब आप बोलते हो ओके सर, या फिर कभी बोलते हो कि ओके। जब आपको ओके बोलने का फील हो उस टाइम पे बोला करो रॉजर, बस। ठीक है, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं है रॉजर के लिए। जब भी ये फील आए कि यहाँ पे ओके बोलना चाहिए तो आप बोलो रॉजर। ठीक है, देन से अगेन आई हैव टोल्ड अर्लियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लोग लिख लो STBY, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है वेट, आई विल कॉल यू। सपोज आप किसी को कॉल किए और वो बिजी है, तो वो रिप्लाई करता है ना आजकल, आई विल कॉल यू लेटर, एक क्विक मैसेज का व्यवस्था होता है फोन में, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू राइट बैक, लाइक दैट। सो आपने ATC को कॉल किया और वो किसी दूसरे काम में बिजी है, तो वो बोलेगा स्टैंड बाय, मतलब रुकिए, मैं अभी दूसरे काम में बिजी हूं, मैं आपको दोबारा से कॉल करूंगा। तो इन द रियल फील्ड अगर वो दोबारा से कॉल नहीं कर रहा है तो आपको 5 मिनट 6 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तब चाहो तो आप फिर से याद दिला दो कि मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। बट इन द एग्जामिनेशन अगर 5 या 10 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो फिर से कॉल कर दो कि सो तो नहीं गया, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, सो इफ समवन हैज टोल्ड स्टैंड बाय, तो रियल टाइम में 5 से 10 मिनट तक का वेट करते हैं हम लोग, बट इन द एग्जामिनेशन 5 से 10 सेकेंड का वेट करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं, टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टैंड बाय मीन्स वेट, आई विल कॉल यू बैक। अनेबल, वेरी सिंपल, आई कैन नॉट कंप्लाई, मैं ये नहीं कर सकता। सपोज आप, चलो मैं ही ले लेता हूँ, मुझे कोई बोले कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो आई विल टेल अनेबल टू डू दैट, नहीं दौड़ सकता हूँ। 200 मीटर मेरे मेरे सांस फूल जाएंगे, मैं एक मोटा आदमी हूँ, आई कैन नॉट run for 1 kilometer. Similarly, if your aircraft cannot do anything performance wise, you are restricted. So you can simply say unable. ठीक है, unable to do, नहीं कर सकता हूं ये चीज। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव के टर्म में हमने समझाया था ना, अगर आपको बोल दे आधे रनवे से टेक ऑफ करना तो आप बोलोगे, ठीक है, नेगेटिव, अनेबल टू टेक ऑफ ड्यू टू एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। पहले आप क्या बोले, नहीं, नहीं कर सकता हूं, क्यों, अनेबल टू टेक ऑफ, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस लिमिटेड है, तो वहां पे यूज करते हैं अनेबल, आई कैन नॉट डू दैट। देन विल को इज अ थिंग, आप किसी भी फ्यूचर चीज का एश्योरेंस करंट टाइम पे देते हो। सपोज आप घर से जॉब के लिए, आप अपने होम टाउन, ठीक है, माँ के पास से आप किसी दूसरे सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो उस टाइम पे माँ बोलती है ना इन जनरल कि बेटा पहुंच के कॉल करना, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ मम्मी करूंगा कॉल। ठीक है, आप बस एक एश्योरेंस दे रहे हो कि मैं पहुंच के कॉल करूंगा, सो दैट इज नोन एज विल को। तो मैं अभी वो चीज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैंने आपकी बात मान ली है, जब वो सिचुएशन आएगा तो मैं आपकी बात को फॉलो कर लूंगा। सो सपोज ATC ने बोला रिपोर्ट रीचिंग 32,000 फीट, 32,000 फीट पे पहुंच के रिपोर्ट करना, अब क्या बोलोगे, विल को, ठीक है कर दूंगा, अभी मैं 5,000 फीट पे ही हूं, तो अभी थोड़ी नहीं करना है, जब पहुंचूंगा तो कर दूंगा, तो उस केस में आप सीधे बोलोगे विल को, हाँ ठीक है कर दूंगा। डन, क्लियर है? ठीक है, देन समथिंग इज वर्ड ट्वाइस। नाउ वर्ड ट्वाइस इज नॉट अ फ्रेज, दिस इज अ एक्शन। ठीक है,
दिस इज एक्शन, कि आप किसी भी सेंटेंस को दो दो बार बोलते हो, ठीक है, आप उस चीज को रिपीट करते हो, आदर जब आप पैनिक में होते हो या आप ज्यादा क्लैरिटी देना चाहते हो, ठीक है। जैसे एम्फेसिस और क्लैरिटी के केस में हम लोग बोलते हैं ना, आई से अगेन, आई से अगेन। सिमिलरली आप किसी चीज को दो दो बार बोलते हो, कब, आदर आप किसी चीज पे जोर देना चाहते हो या कभी आप डर जाते हो। सपोज आपने बहुत बड़ा सा सांप देख लिया जंगल में, तो आप रिपीट करोगे उस चीज को डर के, दो दो बार बोलोगे, एक ही चीज को दो दो बार बोलोगे, अरे बहुत बड़ा सांप था यार, बहुत बड़ा सांप था, लाइक दैट, ठीक है। या फिर कभी चोट लग गया, अरे बहुत जोर से चोट लग गया, बहुत जोर की चोट लगी भाई, ठीक है। सेम, दिस इज एन एक्शन, अगर आप पैनिक में हो या किसी चीज पे जोर देना चाह रहे हो तो खुद से एक ही चीज को दो दो बार बोलते हो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज वर्ड ट्वाइस। दिस इज नॉट अ फ्रेज, दिस इज एन एक्शन। जब आप पैनिक में होते हो आप उसी चीज को दो बार बोलते हो। देन समथिंग इज गो अहेड, ठीक है, कि गो अहेड। सपोज आपने हमको कॉल किया, ठीक है, तो मैंने आपको बोलूंगा कि हाँ ठीक है, ओके ओके भूपेश, गो अहेड, मतलब बताइए क्या बात करनी है आपको। सो गो अहेड का मतलब होता है कि प्रोसीड, बोलिए क्या बात है, आप अपना मैसेज प्रोसीड करिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो आपने टावर को कॉल किया, स्टेशन रीच किया, बेंगलोर टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा, तो उधर से बोल सकता है ब्रावो चार्ली डेल्टा बेंगलोर टावर, गो अहेड, ठीक है बोलो क्या बोलना है। लेकिन गो अहेड को इकाओ ट्रांसमिशन से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, गो अहेड इज नॉट अ फ्रेज। तो इसके बदले क्या करना है, आप अपने कॉल का रेस्पॉन्स अपने कॉल साइन से एंड करोगे, ठीक है। जब आप अपना कॉल खत्म कर लोगे तो लास्ट में एक बार आप अपना कॉल साइन बोलोगे, जो कि इंडिकेशन देगा कि आपने इनवाइट किया है दूसरे स्टेशन को बोलने के लिए। सपोज आपने मुझे कॉल किया, हेलो सर भूपेश बोल रहा हूं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हाँ भूपेश, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ठीक है बोलो क्या बोलना है, ठीक है। तो जब आप बोलते हो ना बेंगलोर टावर विक्टर टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा, तो उसके रिस्पॉन्स में वो भी यही बोलेगा, ब्रावो चार्ली डेल्टा बेंगलोर टावर, बस। इसी का मतलब हुआ, लास्ट में उसने क्या किया, उसने अपना कॉल साइन बोला, मतलब वो आपको इनवाइट कर रहा है कि हाँ ठीक है बोलो। क्लियर। सो गो अहेड के बदले आप अपने कॉल के लास्ट में अपना कॉल साइन बोलिए। इट गिव्स एन इंडिकेशन कि आप अगले स्टेशन को इनवाइट कर रहे हो टू प्रोसीड। सेम चीज मिलिट्री में बोलते हैं वो लोग, ओवर एंड आउट, ठीक है। आप कभी फिल्म देखे होगे तो सुने होगे कि ब्रेवो चार्ली, सॉरी टीम चार्ली, दिस इज टीम ब्रेवो, मैंने टाइगर हिल कैप्चर कर लिया, ओवर एंड आउट। तो बोलता ठीक है मैं नीचे से रिइंफोर्समेंट भेज रहा हूं, ओवर एंड आउट, मतलब हमारी बात खत्म हो गई, अब बोलने को कुछ नहीं है। तो ये मिलिट्री में बोलते हैं ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। या फिर आपने कभी सुना होगा ओवर, ओवर मीन्स ये पर्टिकुलर कॉल खत्म हुआ है लेकिन अभी पूरी बात बोलने को बाकी है। जैसे वो बोलेगा ब्रेवो कमिंग दिस इज डेल्टा ओवर, मतलब कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कॉल खत्म हुआ है। फिर वो बोलेगा हमारा खाना खत्म हो गया है, ओवर, तो बोलेगा हाँ बोलो क्या चाहिए, तो जो भी बोलेगा कि 10-20 बोरी चावल गेहूं जो भेजना है भेजो, फिर बोलेगा ओवर, फिर बोलेगा ओके एनीथिंग एल्स, तो बोलेगा हाँ पानी भी भेजना साथ में, ओवर, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ कॉल खत्म करने के लिए ओवर, पूरा का पूरा इंटायर कम्युनिकेशन खत्म है तो आउट। तो ये चीज मिलिट्री में बोलते हैं लेकिन सिविल्स में इसका यूज नहीं करते हैं। तो उसके बदले क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन के लास्ट में आप अपना कॉल साइन बोल दो, दिस गिव्स इंडिकेशन कि आपका कॉल खत्म हो गया है। डन। एग्जाम में आपको बहुत बार फेस करने को मिलेगा, आप आंसर कर दोगे, एग्जामिनर पीछे से लूल जैसा बिहेव करेगा, बोलेगा आपका कॉल खत्म हो गया है। तो बहुत जरूरी है कि कुछ भी आंसर हो लास्ट में लाउड एंड क्लियर अपना कॉल साइन बोलिए, दिस गिव्स इंडिकेशन कि माय कम्युनिकेशन इज ओवर। क्लियर। तो गो अहेड को डिलीट कर दिया गया है, उसके बदले में आप अपना कॉल साइन बोलिए। जब भी आपको किसी भी टाइप का ब्रॉडकास्ट करने का मन हो, ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है
सिंगल ट्रांसमीटर मल्टीपल रिसीवर, एक ही जगह से हर जगह बोलना है। तो जब भी आपको ब्रॉडकास्ट करने का मन हो तो आप यूज करोगे ऑल स्टेशंस ऑल स्टेशंस, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट के टाइम पे जनरली किसी भी टाइप का रिप्लाई एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट में आप बताते हो, आप पूछते नहीं हो, ठीक है। सो दीज आर द फ्रेजेस, ऑलमोस्ट 22 फ्रेजेस हैं और इन सब की मीनिंग क्रूशियल है। मीनिंग आपको याद रहे ना रहे, आपको इनके मीनिंग्स की समझदारी जरूर होनी चाहिए, समझ जरूर होनी चाहिए कि कब करेक्ट यूज करना है, कब अफर्म यूज करना है, कब आई से अगेन बोलना है, कब से अगेन बोलना है। तो जब क्लास में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा या क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, आप अगर क्लास में पार्टिसिपेट करोगे देन ट्रस्ट मी, आपको ये सारे फ्रेजेज क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बट अगर आप क्लास में साइलेंट रहोगे, अगर साइलेंटली ऑब्जर्व करना चाहोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे आंसर में, डाउट रह ही जाएगा, ठीक है। तो क्लास में बी वोकल, यूज ऑल फ्रेजोलॉजीज व्हाइल आंसरिंग, आई विल आल्सो यूज करेक्ट फ्रेजोलॉजी फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो क्लास में पार्टिसिपेट करो, प्रैक्टिस करो, आपको ये सारे फ्रेजेस याद हो जाएंगे। रटने की कोशिश करोगे, बार बार भूलोगे, ठीक है। तो मैंने 2 नहीं बताया, ब्रेक और ब्रेक ब्रेक बाद में बताऊंगा, अभी के लिए नहीं है। सो आउट ऑफ 22 ब्रेक और ब्रेक ब्रेक को छोड़ के बाकी सबको समझिए, एक बार खुद से भी पढ़िए, बट कोई भी इसको याद करने की कोशिश नहीं करेगा। आप याद करने की कोशिश करोगे, डिसअपॉइंट होगे, याद ही नहीं रह पा रहा है यार, 2 दिन से रट रहा हूं, याद ही नहीं हो पा रहा। ये चीज याद करने का है ही नहीं, प्रैक्टिस करने का है। याद करोगे मुश्किल में फंसोगे, ठीक है। तो इस चीज को प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए आपको क्लास में आंसर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। साइलेंट रहोगे तो फिर मुझे भी पता नहीं चलेगा आपको कितना याद रह पाया है। डन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ आई नीड affirmation from all stations. सब लोग हाँ ना बोलिए। Is that clear to everyone? All phraseology? Affirm, sir. Affirm. ठीक है। नाउ अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने इतना लंबा चौड़ा जो बताया, इसका मीनिंग ये, उसका मीनिंग ये, वो आपको कैसे पता चला? आपने तो बोला कि कोई सिलेबस ही नहीं है, फिर आपको कैसे पता कि इसका मतलब ये? कहाँ से आपने जाना? ठीक है, दिस इज मैनुअल ऑफ रेडियो टेलीफोनी। मैंने जितने भी फुल फॉर्म मीनिंग ये वो बताए, वो यहाँ से ड्रिवन आउट है, इसमें सब लिखा हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एवरीथिंग इज रिटेन इन दिस बुक, ठीक है। तभी मैंने आपको उस दिन कहा था कि इस बुक को पढ़िए। देखो हर चीज इसमें लिखा हुआ है, इसमें ओवर एंड आउट भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिख दिया है? नॉट नॉर्मली यूज्ड इन VHF कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरी फ्रेजोलॉजी। कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई भी टीचर जो कि RT पढ़ाएगा आपको, मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस उसका हर एक रेफरेंस इसी बुक से बिलोंग करेगा, रेफरेंस इसी बुक से रहेगा। बट दिस इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट कंप्लीटली, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके मटेरियल को बनाना पड़ता है। बाकी बेसिक रेफरेंस यही बुक रहेगा हमेशा, कोई भी पढ़ाए, कहीं से भी पढ़ाए, ठीक है। हर चीज इस बुक से रेफरेंस लेके ही पढ़ाएगा। सो ऑल द फ्रेजेस दैट आई हैव टोल्ड रिटन इन दिस बुक, ये बुक आपको ड्राइव पे शेयर किया गया है, आप उसका वहां पे रीड आउट कर सकते हो डाउनलोड करके। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग पढ़ो, कल अगर संडे आप लोगों को छुट्टी है, पढ़िए, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, और पूरे RT का अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी बोला सब इधर लिखा हुआ। फिर मैंने ये भी बोला कि गो अहेड को डिलीट कर दिया गया, ये मुझे कहां से पता चला? देखो इसी में लिखा हुआ है कि गो अहेड इज नॉट बीइंग यूज्ड। और ये कब डिलीट किया गया था पता है? 2007 का है ये बुक। उसी टाइम पे गो अहेड को एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट नॉट टू यूज गो अहेड। जब आप एग्जाम में भी गो अहेड का यूज करोगे ना, तो एग्जामिनर पूछ देगा
इज गो अहेड अ करेंट फ्रेजियोलॉजी? तो आपको बोलना पड़ेगा नो सर। तो बोलेगा व्हाई आर यू यूजिंग? तो आगे जब आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के आंसर में कई जगह पे गो अहेड का यूज मिलेगा। तो ये एक सस्पेक्टेड फ्रेज है। कभी कभी आप बोल देते हो एटीसी को या एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं होता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग अच्छा ही निकलता है कि हाँ प्रोसीड करिए। बट रूल में नहीं है तो अवॉइड करिए बोलना, ठीक है। सो दीज आर द फ्रेजेस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट नाइसली। रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो आप काबिल तारीफ हो, बिल्कुल आप तारीफ के काबिल हो। बट आई विल सजेस्ट फ्रेजेस को रटने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट दोनों होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने ऑल फ्रेजियोलॉजी को, आई थिंक, आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशंस एंड यूजेस, थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए I was able to do that. And tomorrow onwards we will see chart reading techniques, ठीक है। चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, क्या उसका मीनिंग है, वो हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। सो tomorrow and day after tomorrow is also going to be crucial. आप लोग अवेलेबल रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन, चलो, that's all for today. I'm closing the meeting. We'll see you tomorrow 9 o'clock. Done. Good night for all. Good night everyone. Good night, sir.